Assalamu alaikum, everyone, and thank you so much for joining us today. I hope you all are having a very good start of the day. My name is Yumna, and I am currently working as a Senior Regulatory Affairs Officer at Dow Institute of Biological, Biochemical, and Pharmaceutical Sciences. Today's session is on managing dose adjustments safely in complex oncology regimens. I'm delighted to introduce our speaker for today's webinar on managing dose adjustments in complex oncology regimens. Ms. Sabah Elahi is a PharmD graduate from Jinnah University and a certified oncology pharmacist with a specialized certification from the University of South Indiana. She holds an MBA in health management from IBHM Dow University of Health Sciences. With over 14 years of extensive experience in hospital pharmacy practice, Ms. Elahi has built an impressive career across Pakistan's leading healthcare institutions, such as Dow University of Health Sciences, Aga Khan University Hospital, and currently serving as lead oncology pharmacist at Ziauddin University Hospital. Her unique combination of clinical expertise, oncology specialization, and healthcare management experience makes her an exceptionally qualified to guide us through today's critical topic of safe dose adjustments in oncology care. Please join me in welcoming Ms. Sabah. Thank you so much, and over to you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा प्रेजेंटेशन शो हो रही है? यस मैम, हो रही है। अच्छा, ओके, अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्टार्ट। मेरा डिटेल इंट्रोडक्शन जो है वो मिस यमुना ने करवा दिया है। थैंक यू सो मच यमुना फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन क्योंकि ऑलरेडी हमारे 20 मिनट्स वेस्ट हो गए ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। So the topic is managing dose adjustment safely in complex oncology regime. Objectives. By the end of this PPT, I will try to deliver the following points, identify common causes that need dose modification. Dr. Sabah, we lost your voice. We lost your voice, Dr. Sabah. Dr. Sabah, can you unmute your mic? Hello, am I audible? Yes, ma'am, you're audible now. Okay, thank you. So the objectives are, by the end of this presentation, I will try to deliver the following points. Identify common causes that need dose modification in oncology patient. What is the evidence-based strategies for dose adjustments, prevent medication errors during dose modification, and improve multidisciplinary communication? So why dose adjustments matter? Dose adjustment is basically a critical component of patient-centered therapy, especially in oncology. Also, like that, we all know the oncology and chemotherapeutic items comes under the category of high-risk treatment, and it requires a careful balance between maximizing treatment efficacy, minimizing drug-related toxicity, appropriate dose modification,
that ultimately help us to ensure that patient receive the optimal therapeutic benefit while reducing the risk of severe adverse effect. So क्या होगा if inappropriate dose adjustment अगर हमारी होती है तो ये inappropriate dose adjustment क्या करेगी ultimately? Of course हमारे पास severe toxicity हो सकती है, पेशेंट को कैसे होगी वो अभी हम देखते हैं, डिजीज प्रोग्रेशन होगी, ट्रीटमेंट फेलियर पे चले जाएंगे, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होगा, और इट ऑल जब सब कुछ हो जाएगा तो वो कहाँ पे फॉल करेगा, मेडिकेशन एरर में. So that we all know that all chemotherapeutics come under the category of highlight medication. हाईलाइट मेडिकेशन है तो ऑफ कोर्स इन जितनी भी हमारी कीमोथेराप्यूटिक्स होती हैं उनका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, और अगर उससे कोई भी टॉक्सिसिटी होगी तो वो लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी हो सकती है. क्योंकि फिर वही बात है, क्या होता है, उसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है. So inadequate dose modification based on renal function, hepatic functions, body surface area, organ dysfunction, or hematological parameters can lead to complications such as severe neutropenia, thrombocytopenia, anemia, mucositis, nephrotoxicity, hepatotoxicity, neurotoxicity, cardiotoxicity, sepsis, and so many things. तो जब भी हम डोज एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो हमारे जहन में टॉक्सिसिटीज होनी चाहिए कि अगर हमारी डोज ज्यादा होती है या हमारी डोज कम होती है तो उससे कौन कौन सी टॉक्सिसिटीज हो सकती है. तो बीइंग अ फार्मासिस्ट, जब भी हमारे पास कोई भी कीमो का रिजीम स्क्रीन पर आता है तो उस रिजीम में हो सकता है एक ड्रग हो सकता है एक से ज्यादा ड्रग्स हो, 3 ड्रग्स हो, 4 ड्रग्स हो, तो हमें इंडिविजुअल ड्रग वाइज ये देखना है कि क्या उसमें कोई डोज मॉडिफिकेशन की नीड है या नहीं है. कॉमन रीजंस क्या हो सकते हैं, हम क्यों डोज मॉडिफिकेशंस की तरफ जाते हैं या हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम डोज मॉडिफिकेशंस करें. सबसे पहले तो है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर. एज का फैक्टर होता है, एल्डरली पेशेंट होते हैं, हमारी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी इज डिफरेंट, सॉलिड ट्यूमर्स इज डिफरेंट, हेमेटोलॉजी इज डिफरेंट. तो एज रिलेटेड फैक्टर है, क्या बच्चा है, क्या पीडियाट्रिक पेशेंट है, क्या एल्डरली पेशेंट है कि हमें डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ रही है. रेनल डिसफंक्शन तो नहीं है. हम आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे हमारी कुछ ऐसी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं जो जिनमें हेपेटिक डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है, कुछ ऐसे हैं जिसमें रेनल डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है. तो पेशेंट का क्या रेनल स्टेटस ठीक है, पेशेंट का हेपेटिक इम्पेयर्ड तो नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, एज रिलेटेड फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस तो नहीं है, हाइपो एल्ब्यूमिन, क्यों एल्ब्यूमिन के लेवल्स देखने की हमें जरूरत है जब हम कीमोथेराप्यूटिक्स के ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, और कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है. देखिए, बीइंग अ फार्मासिस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, इसमें ज़ाहिर है न्यू कमर्स भी होंगे, जो नए नए फार्मासिस्ट बने हैं वो भी होंगे, वो भी फार्मासिस्ट होंगे जो एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं या ट्रेनी फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं. तो when we talk about the specialized pharmacist, what is our responsibility? ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास कंसल्टेंट का प्रोटोकॉल आ गया, हमने उसको देखा और हमने ये एज्यूम कर लिया कि सब कुछ ठीक है और हमने उसको प्रोसेस कर दिया. बीइंग अ फार्मासिस्ट, जब आपके पास प्रोटोकॉल आ रहा है तो आपने, जो हम 5 आवर्स पढ़ते हैं, आपने पेशेंट की डोज से लेकर, पेशेंट के नाम से लेकर, पेशेंट के एमआर नंबर से लेकर, फिर आप उसका बॉडी सरफेस एरिया चेक करेंगे, उसका हाइट, उसका डोज, आप उसका बीएसए भी कैलकुलेट करेंगे. ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए फार्मासिस्ट के. देन आप देखेंगे कि उसका जो इंडिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली रजीम प्रोटोकॉल में आपको रिसीव हुआ है या नहीं. ठीक है जी, वो भी हो गया. अब आपने उसकी डोजेस को चेक करना है. डोजेस स्टैंडर्ड्स क्या हैं? इफ आई से ABVD, तो A क्या है, B क्या है, D क्या है. तो अगर मैं कहती हूँ A इज एड्रियामाइसिन, दैट इज डॉक्सोरिबोसिन, तो उसकी डोज जाती है 25 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर से. तो मैं रिलाई नहीं करूंगी कि जो मेरे पास डॉक्टर के पास से आया वो ठीक होगा, मैं उसको रीचेक करूंगी. रीचेक कर लिया, डोजेस सब ठीक है, तो फिर हम डोज एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे. क्या इस पेशेंट को किसी डोज एडजस्टमेंट की नीड तो नहीं है? अगर हम कह रहे हैं डॉक्सोरिबोसिन, तो क्या हमें उसमें रेनल एडजस्टमेंट की जरूरत तो नहीं है या हेपेटिक एडजस्टमेंट की जरूरत तो नहीं है? पेशेंट की एज क्या है?
तो ये सारे फैक्टर्स हम देख रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर हम ट्रीटमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, किसी का माइक आई गेस ऑन है, अगर हम ट्रीटमेंट रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें तो क्या कुछ हो सकता है? माइलोसप्रेशन है, म्यूकोसाइटिस है, न्यूरोपैथी हो सकती है, ऑर्गन टॉक्सिसिटीज हो सकती है। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शंस हमें चेक करने कि अगर पेशेंट को कीमोथेरेप्यूटिक रिजीम जा रहा है तो और क्या जा रहा है, कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव जा रही हैं या क्या एंटी फंगल्स तो नहीं जा रही हैं, और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी सी चीज है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लाइक वी हैव अ रजीम ऑफ फॉल्फ्रीनॉक्स। फॉल्फ्रीनॉक्स एक रजीम है जो कि कोलोन सीए में जा रहा होता है, जो कॉमनली पेशेंट को क्या हो रहा होता है, न्यूट्रोपीनिया हो रहा है या डायरिया हो रहा है। अच्छा, अब हमें अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो हमें इसमें से कौन सी ड्रग है, फॉल्फ्रीनॉक्स में कितनी ड्रग्स हैं, सबसे पहले तो फार्मासिस्ट को ये पता होना चाहिए। If we set fall, the fall is folinic acid, calcium glucoborate. 5 is 5-uracil. IR is irinotecan and OX is oxaliplatin. तो इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि डायरिया करवा रही है या कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि न्यूट्रोपीनिया करवा रही है? तो अगर हम कह रहे हैं कि आयरिनोटिकन हम पेशेंट को दे रहे हैं और ऑक्सैलिप्लेटिन दे रहे हैं, और अगर डायरिया हो रहा है पेशेंट को, तो फिर हमें क्या करना है, हमें प्री कीमोस में क्या देना है या हमें पोस्ट कीमो में क्या देना है? तो दिस इज मेजर रोल ऑफ फार्मासिस्ट टू चेक ऑल दीज थिंग। अगर हम बात कर रहे हैं सिस्प्लेटिन बेस्ड थेरेपी की, तो वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवा रही है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवा रही है तो हमें जब भी सिस्प्लेटिन देखना है तो हमें पहले पेशेंट का रेनल स्टेटस चेक करना है, उसका क्रेटिनिन क्लियरेंस चेक करना है। हम लैब्स चेक किए बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। एट एनी कॉस्ट हमें पेशेंट का रेनल स्टेटस चेक करना है। So what are the key principles of safe dose adjustment? अच्छा, अगर हम assess the patient completely, अगर हम पेशेंट को assess करें तो उसमें हमारे पास ECOG स्केल होता है पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस चेक करने के लिए, जो कि 0 से लेकर 5 तक है। लाइक 0 पे हम ये देख रहे होते हैं कि पेशेंट कितना एक्टिव है, पेशेंट क्या फुली एक्टिव है, इज ही एबल टू कैरी ऑन ऑल प्री डिजीज एक्टिविटी विदाउट रिस्ट्रिक्शन, क्या वो अपने सारे काम खुद कर रहा है। अगर हम 1 पे जाते हैं तो दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, एम्बुलेटरी एंड एबल टू डू लाइट वर्क बट लिमिटेड इन फिजिकल डिमांडिंग एक्टिविटीज। अगर हम सेकंड पे जाएं तो दैट इज एम्बुलेटरी अनएबल टू वर्क फुल टाइम up and about more than 50% of working hours, capable of self care but unable to work. अगर हम थर्ड पे जाएं, लिमिटेड सेल्फ केयर, कंप्लीटली डिसेबल, 4 एंड 5th इज डेथ। तो ये पेशेंट का ईसीओजी परफॉर्मेंस स्टेटस है, जिसकी बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को कीमो या कीमोथेराप्यूटिक रजीम जो है वो किस तरह से देना है। लाइक हमें कंसल्टेंट कह रहे हैं कि जी इसका स्टेटस इतना है, आप इसकी जो टोटल रजीम की जो डोजेज हैं उसको 15% लेस करके दे रहे हैं या 25% लेस करके दे रहे हैं। दिस इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट, कि अगर कंसल्टेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इसको 15% लेस कर दें, तो फार्मासिस्ट उसको 15% लेस करेगा सारी डोजेस को। फिर वो कंसल्टेंट से शेयर करेगा, कंसल्टेंट इसको रीचेक करेंगे, साइन करेंगे, देन वो प्रोसेस होगी, प्रिपेयर होगी। आप करंट लेबोरेटरी वैल्यू ऑर्गन फंक्शन ट्रेंड देख रहे होते हैं, आप उसका अगेन वही स्टेटस देख रहे होते हैं, जहाँ पे जरूरत है आपके ईसीजी की, जहाँ पे आपको जरूरत है हेपेटिक लैब्स की, जहाँ पर आपको जरूरत है रेनल की, तो वो सब कुछ चेक हो रहा होता है और टॉक्सिसिटी ग्रेडिंग चेक हो रही होती है, वो हम आगे बात करते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनको देखते हुए ये सारी जितनी बात मैं कह रही हूँ वो हम चेक कर रहे होते हैं? दैट आर एनसीसीएन गाइडलाइंस, एस्को की रिकमेंडेशन है, कुछ हमारे इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट लेबलिंग होती है, जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके जो कमर्शियल लेबल्स होते हैं उस पर भी बहुत सारी चीजें मेंशन होती है, बट वो बहुत बाद में देख रहे होते हैं। पहले हम एनसीसीएन, एस्को और बहुत सारी गाइडलाइंस है जिनको फॉलो किया जा रहा होता है फॉर सेफ डोज एडजस्टमेंट्स। और कुछ हमारे खुद इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हमारे पास जाउदीन में भी हैं, हमने उसको प्रिपेयर किया हुआ है और वो पेशेंट वाइज प्रिंट हो रहे होते हैं।
So what are the key principles of safe dose adjustment? That is standardized documentation, clear rational, dose calculation, transparency, communication to all teams. जब हमें जरूरत पड़ गई कि अब हमें सेफ डोज एडजस्टमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसको साइलोज में कर लेंगे? हम किसी को कम्युनिकेट नहीं करेंगे? क्या हमारे वार्ड की टीम को नहीं पता होगा? क्या हमारी नर्सिंग को नहीं पता होगा? या हमारे जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, जो फ्लोर के एमओज हैं, पीजीज हैं? तो ऐसा नहीं है। जब डोज एडजस्टमेंट की बात होती है, हम उसको डोज को एडजस्ट करते हैं, तो हम उसको अपने वो सीपीओई के थ्रू आएगा, सीपीओई पे वो डॉक्यूमेंट होगा, उसका क्लियर रैशनल होना चाहिए। क्लियर रैशनल कि आपके पास उसका रेफरेंस होना चाहिए, जो हमने इससे पहले स्लाइड में बात की कि हमारे पास प्रॉपर रेफरेंस होना चाहिए। किस रेफरेंस की बेसिस पे हमने रिकमेंड किया था कि जी अगर हेपेटिक इम्पेयरमेंट है तो आप इसकी डोज को 15% लेस कर दें या 25 लेस कर दें, तो उसका प्रॉपर एक रैशनल होना चाहिए। डोज कैलकुलेशन ट्रांसपेरेंसी, फार्मासिस्ट इज द कस्टोडियन टू चेक डोज। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी आप सबसे कि जब हमारे पास न्यू कमर्स आ रहे होते हैं ना फॉर द रिक्रूटमेंट, तो हम वो बात कर रहे होते हैं कि जी हमने एनआईबीडी में काम किया है या कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में काम किया और हम एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं, हम एज अ ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप डोज कैसे कैलकुलेट करते हो, तो मेजोरिटी फार्मासिस्ट हमारे ये कोट कर रहे होते हैं कि नहीं, वो तो हमारे पास आती है बस और हम उसको प्रोसेस कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। We all are pharmacists, so please behave like a pharmacist. आपने डोज को चेक करना है। आप 100% भी श्योर हैं, 110% भी श्योर हैं कि ये डोज तो ठीक है, कंसल्टेंट के साइन है, इसका मतलब है डोज ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू रीचेक द डोज। आप ये अज्यूम करेंगे सब कुछ गलत है, मुझे स्क्रैच से इसको रीचेक करना है, तो डोज कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, आपको उसको वेरीफाई करना है, आपको उसको डबल चेक करवाना है। जब तक आप डोज जो आपकी स्टैंडर्ड डोज है उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे और वो अगर करेक्ट नहीं होगी, तो आप डोज एडजस्टमेंट पे कैसे जा सकेंगे? जब आपकी स्टैंडर्ड डोज सही नहीं होगी, तो अल्टीमेटली जो आपने डोज एडजस्ट की हुई है वो भी ठीक नहीं होगी, और फिर आपको उसको कम्युनिकेट करना है टू ऑल टीम्स और उसको सिस्टम में डॉक्यूमेंट करना है एज ए इंटरवेंशन। अगर आपने ये इनिशिएट किया है, ये आपकी तरफ से प्रोएक्टिवली और विजिलेंटली डॉक्यूमेंट हुआ है कि जी ये पेशेंट की लैब्स इंपेयर्ड थी और डोज पूरी जा रही थी, मैंने उसको कट डाउन किया, मैंने उसको रिड्यूस किया, तो ये आपकी इंटरवेंशन है फार्मासिस्ट की, तो आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। सो पीछे हमने बात की थी टॉक्सिसिटी ग्रेडिंग की, तो ये CTCAE टॉक्सिसिटी ग्रेडिंग है। अच्छा जी, इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी यही होता है कि हमारी जो टॉक्सिसिटी ग्रेड होते हैं वो माइल्ड से होते हैं, लाइक मोर्टेलिटी तक, डेथ तक। जो इसमें ग्रेड 1 है वो माइल्ड होता है, जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जिसमें कोई इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं है, नो इंटरवेंशन नीडेड। ग्रेड 2 होता है, मॉडरेट होता है, symptoms required minimal interventions may limit instrumental activities of daily living. Grade 3 is medically significant, hospitalization indicated or prolonged limits self-care. Grade 4 urgent intervention required to prevent death. तो ये हमारी एक CTCAE की ग्रेडिंग होती है। अच्छा जी, स्टैंडर्डाइज टॉक्सिसिटी असेसमेंट गाइड, डोज मॉडिफिकेशन, इंप्रूव कम्युनिकेशन, रिड्यूस वेरिएबिलिटी इन डिसीजंस। ठीक है, आप जब ये सब कुछ कर रहे हो और आप मल्टीपल टीम्स को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जाहिर है उसकी जो आपकी जो वेरिएबिलिटी होती है वो रिड्यूस होती है। सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे होते हैं, सबको पता है कि डोज मॉडिफिकेशन हुई है, आपकी कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेट किया, ये नहीं कि जी आपने डोज एडजस्ट कर दी, आपने सिस्टम पे उसको सॉफ्टवेयर पे लॉक कर दिया, वो कीमो प्रिपेयर हो गई, वो पेशेंट तक चली गई, ना पेशेंट को पता है, ना उसके वार्ड के स्टेक होल्डर्स को पता है, ना नर्सिंग को पता है, क्योंकि ये पूरा आपका एक प्रोसेस चलता है। आप डॉक्टर की ऑर्डर एंट्री होती है, देन फार्मासिस्ट ट्रांसक्राइब करता है, देन नर्स उसको अपने EMR में लॉक करती है। तो ये एक पूरी चेन है जिसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं, और आप पेशेंट से भी कंसर्न लेते हैं, आप उसको भी बताते हैं, क्योंकि आप हमारे जो ऑन्कोलॉजी के पेशेंट होते हैं वो जाहिर है जो उनका साइकिल चल रहा होता है, लाइक वो 14 डेज पे भी आ रहे हैं, वो 7 डेज पे भी
वैसे आप फिर म्यूट हो गई। फिर आई थिंक वॉइस का इशू है, एम आई ऑडिबल? यस मैम, अब आपकी आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। आप मेरा एक्चुअली Yes, ऑर्गेनाइजेशन का we कुछ can hear you. कनेक्टिविटी का इशू है, प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर जहां मेरी वॉइस चली जाए। तो Okay, ma'am, I will दिस let you इज know. जी, तो रीनल फंक्शन बेस्ड एडजस्टमेंट। अच्छा जी, क्या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हो सकती हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट renal function based adjustment? Serum creatinine alone may be misleading. Use creatinine clearance, EGFR calculations, monitor trend, not isolated values. हमने आज देखा पेशेंट हमारे पास कंटिन्यूटी में कीमो में चल रहा है। फॉर एग्जांपल पेशेंट वाज एडमिटेड फॉर 7 days कीमोथेरेपी, और पेशेंट की कंटिन्यूटी में फॉर एग्जांपल सिस्प्लेटिन चल रहा है। डे 1 पे पेशेंट नॉर्मल है, डे 2 पे पेशेंट नॉर्मल है, डे 3 पे पेशेंट नॉर्मल है, डे 4 पे हमें एट द टाइम ऑफ लैब्स हमें पता चलता है कि कुछ रिनल इम्पेयरमेंट है। तो हम पूरा ट्रेंड फॉलो करेंगे, हम आज एक दिन की लैब्स नहीं देखेंगे। क्या हमारा प्रीवियस ट्रेंड कैसा था, आज कैसा है, क्या वो बहुत ज्यादा फॉल कर रहा है? तो हम एक दिन की वैल्यूज पे बेस नहीं करेंगे, हम पूरा ट्रेंड देखेंगे। Common drugs required renal dose adjustments. So these are the drugs: carboplatin, cisplatin, capecitabine, methotrexate, pemetrexate. Like ये few drugs हैं जिन पे हमें हर हाल में creatinine clearance देखना है। किस तरह से होगा ये, किस तरह से सेफ्टी को मॉनिटर करेंगे? Recalculate dosing before every cycle. ठीक है, अगेन वही बात कि हर साइकिल से पहले आपने डोजेस लैब्स देखनी है, डोज को वेरीफाई करना है, डोज को रीचेक करना है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ली हमने कि पेशेंट जो है वो लास्ट 7 days से कंटिन्यूअसली कीमो उसकी चल रही है, और आज डे 5 है या डे 6 है, तो मैं एज्यूम नहीं कर सकती कि उसकी लैब्स भी ठीक होंगी, क्योंकि ये डेली मॉनिटरिंग हो रही है। पेशेंट एडमिट है, डेली मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी डेली लैब्स हो रही है, डेली उसको मॉनिटर किया जा रहा है, उसका रेनल आउटपुट देखा जा रहा है। तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते ना, हम डिपेंड कर सकते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट से। क्लिनिकल फार्मासिस्ट उठेगा, राउंड पे जाएगा, वहां पे वो पेशेंट को असेस करेगा, देन वो आके ऑपरेशनल फार्मासिस्ट को बताएगा, देन ये नहीं। जो फार्मासिस्ट, जिस फार्मासिस्ट के पास भी स्क्रीन पर ऑर्डर आ गया, जो भी उसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, ही और शी इज द रिस्पॉन्सिबल टू रिकैलकुलेट द डोज, टू वेरीफाई द पेशेंट लैब्स पैरामीटर्स। आपने उसका हाइड्रेशन स्टेटस को वेरीफाई करना है, एंड अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिक कॉम्बिनेशंस व्हेन पॉसिबल।
अच्छा, वो कैसे होगा? दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट। अगर आप ये देख रहे हैं कि पेशेंट को कार्बोप्लेटिन चल रहा है या पेशेंट को सिस्प्लेटिन चल रहा है और पेशेंट को कुछ ऐसी और भी ड्रग्स चल रही हैं जिसमें रिनल डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो अब क्या करना है? आपने सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, आपने उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, अभी हम आगे इंटरेक्शंस पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इंटरेक्शंस कौन कौन से मेजर इंटरेक्शंस हो सकते हैं। तो फार्मासिस्ट ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी करनी है। फार्मासिस्ट इज द रिस्पॉन्सिबल टू कन्वे द सोल्यूशन। सोल्यूशन भी आपने देना है कि इसका डिफरेंस बढ़ा दें या इसको स्टॉप कर दें या इसकी डोज को कम कर दें या इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें। ये सारी वर्किंग फार्मासिस्ट ने करके कंसल्टेंट के पास लेके जानी है, फिर उसकी इंटरवेंशन एक्सेप्ट होगी। हेपेटिक फंक्शन में हम क्या चेक कर रहे होते हैं? बिलीरुबिन कर रहे होते हैं, AST, ALT, एल्बुमिन एंड INR. The most common drugs that required HDA, irinotecan, paclitaxel, vincristine, all TKIs and anthracyclines. अच्छा, ये एल्बुमिन पे भी हम आगे बात करेंगे, क्यों हम इतना एल्बुमिन बार बार हमारी स्लाइड्स में आ जाता है। ओके, सो डोज एडजस्टमेंट्स इन ओरल कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, और उसमें हमें चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपेसाइटाबेन, ओलापेरेब, osimertinib, palbociclib, these are the drugs that patient take as a take home medication, जो हम उसको दे देते हैं और उसको गाइड कर देते हैं कि आपने ये चीजें देखनी है और आपने इसको ओरली घर पे लेना है। ज़ाहिर है हर कीमो के लिए पेशेंट एडमिटेड नहीं हो सकता। बहुत सारी आईवीज भी ऐसे होती हैं जिनको हम इन्फ्यूजन पंप्स में प्रिपेयर करके पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, पेशेंट घर चला जाता है, तो उसका लेंथ ऑफ स्टे जो है वो हॉस्पिटल में कम हो जाता है और दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। Adherence variability, self-administration error, delay toxicity, and drug-food interaction. पेशेंट किसी ओरल कीमोथेरेप्यूटिक पर है, पेशेंट वो घर लेकर चला जाता है। जब मेडिकेशन आपकी घर पहुंच जाती है, आपको उसको उसकी स्टोरेज कंडीशन देखनी है। आपने उसको किस तरह से स्टोर करना है, फ्रिज में करना है, रूम टेम्परेचर पे करना है। ऑफ कोर्स फार्मेसी का टेम्परेचर, घर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो दिस इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट कि आपने कोई भी हाई लेवल मेडिकेशन देते हुए, वैसे नॉर्मली मेडिकेशन देते हुए पेशेंट को ये सब चीजें काउंसिल करनी है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एरर हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आगे पीछे कर दी, खाने से पहले लेना था, खाने के बाद ले लिया, खाने के साथ ले लिया, या कोई फूड ड्रग इंटरेक्शन हो गया पेशेंट से, तो दीज आर द चैलेंजेस। टॉक्सिसिटी हुई, पेशेंट को पता नहीं चला, उसने रिपोर्ट करने में देर कर दिया, कोई ड्रग फूड इंटरेक्शन हो गया। पेशेंट की आपने काउंसलिंग करनी है, बार बार बात करनी है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। देखिए, फार्मासिस्ट की जो है ना वो बड़ी मल्टीटास्किंग जॉब होती है। फार्मासिस्ट ने ऑर्डर प्रोसेस करने से लेकर जब तक ड्रग पेशेंट के साथ उसके घर चली गई है वहां तक पेशेंट के साथ कनेक्टेड रहना है। एंड दिस इज द रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, दिस इज द रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये बिल्कुल मत सोचा करें कि हम जब क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनेंगे तो ये काम करेंगे जब हमें टैग मिलेगा। हमारी क्लिनिकल एक्टिविटी, फार्मेसी में बैठ गए, हमारे पास किसी भी ड्रग का ऑर्डर आ गया, वहां से हमारी क्लिनिकल जॉब है वो स्टार्ट हो जाती है। जरूरी नहीं है उसके लिए आपको उठ के वार्ड में जाना है। तो जब एज अ टेक होम मेडिकेशन आप जा रहे हैं पेशेंट की काउंसलिंग करने के लिए, आप पेशेंट को कन्विंस करेंगे, पेशेंट को काउंसिल करेंगे, आप उसको डोज कैलेंडर दे सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं टॉक्सिसिटी कॉल के लिए। आप उसको वीकली कॉल कर सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये सब वो ड्रग्स नहीं है जो सब पेशेंट्स को चल रही हैं। कुछ पेशेंट्स होंगे आपके जो इन ड्रग्स पर होंगे, जो ओरल मेडिकेशंस पर होंगे। ठीक है, और आप अपना जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसी में आप अलर्ट्स डाल दें। जिस वक्त मेरा फार्मासिस्ट कोई भी ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है या ट्रांसक्राइब कर रहा है, तो वो अलर्ट्स पहले मेरे फार्मासिस्ट के पास आ जाएं कि आप जब अपने पेशेंट को ये डिस्पेंस करेंगे तो आपने उसको ये फ्यू पॉइंट्स हैं जो कि काउंसलिंग करनी है। आप कोई टेक होम कार्ड्स बना सकते हैं कि वो टेक होम कार्ड्स आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। आप कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक फ्लायर बना सकते हैं जो कि आपके पेशेंट के पास हो, ड्रग के रिलेटेड, आपको भी पता हो, आपकी फार्मेसी टीम को पता हो कि पेशेंट आपसे क्या सवाल कर सकता है, तो आपके पास उसके आंसर्स पहले से हों। तो इम्यूनोथेरेपी मॉडिफिकेशंस, कुछ इम्यूनोथेरेपीज होती हैं।
जो कि जिनमें डोज मॉडिफिकेशन चाहिए होती हैं। अच्छा, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर द रोल ऑफ एल्बुमिन एंड कीमोथेरेपी? अच्छा, ये मेरे ख्याल में बहुत सारे हम फार्मासिस्ट, हमसे भी मिस हो जाता था जब हम वर्क कर रहे होते थे एज अ फार्मासिस्ट, तो हम भी मिस कर देते थे इसको। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, जब वो बेड साइड पर जा रहे होते हैं, तो वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि आपका एल्बुमिन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, या एल्बुमिन को देखना क्यों जरूरी है। एल्बुमिन होगा, एल्बुमिन के साथ ड्रग जाके बाइंड होती है, एल्बुमिन के लेवल्स लो होंगे, ड्रग बाइंड नहीं होगी, फ्री जो आपकी ड्रग है वो आपके उसके लेवल्स इंक्रीज होंगे, और दैट अल्टीमेटली leads to toxicity. So many chemotherapeutic agents are protein bound, and the low albumin may increase free active drug levels. Toxicity risk may increase despite standard dosing. Toxicity increase होगी, अल्टीमेटली आपका पूरा ट्रीटमेंट जो है वो फेलियर की तरफ चला गया। What are the most common drug interaction in complex regimes? High risk interaction categories कौन कौन सी हैं? जब भी हम कीमोथेराप्यूटिक्स पेशेंट को दे रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वो कौन सी ड्रग्स हैं जो हमें पता है कि पेशेंट को जा रही होंगी। एंटी फंगल्स भी जा रही होंगी, एंटी एपिलेप्टिक्स भी जा रही होंगी, एंटीबायोटिक्स भी जा रही होंगी। हो सकता है पेशेंट कोई हर्बल मेडिकेशन ले रहा हो, अगर ले रहा है तो वो हमें कैसे पता चलेगा? पेशेंट की हिस्ट्री लेके, और वो कौन कर रहा है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट कर रहा है एट द बेड साइड। और इम्यूनोसप्रेसेंट्स अगर पेशेंट ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें ड्रग इंटरेक्शंस की, तो अगर पेशेंट विंट्रिस्टीन पर है और उससे कोई एजोल एंटी फंगल चल रही है, तो उससे सिवियर न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी है। अगर पेशेंट को विनब्लास्टीन चल रहा है और साथ में कोई एजोल एंटी फंगल जा रही है, दैट में लीड टू सिवियर माइलोसप्रेशन एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। पेशेंट अगर पैक्लिटैक्सिल ले रहा है और साथ में कोई फंगल एजोल ग्रुप जा रहा है, दैट अगेन इंक्रीजेस माइलोसप्रेशन। तो ये चीजें आपने अपने कंसल्टेंट को बतानी है। ये हमारे फार्मासिस्ट की कोर इंटरवेंशंस होती हैं, ठीक है, जिसको डॉक्यूमेंट भी करना है, जिसको बताना है, और इसका सोल्यूशन भी लेकर जाना है, ठीक है। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज इन चीजों को आज ही आप लोग देखें कि अगर आपने अपने एरियाज में काम कर रहे हैं, जो हमारे ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट हैं, जो हमारे ऑन्कोलॉजी क्लिनिकल स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट हैं, प्लीज इन चीजों को देखें, इन चीजों को रिपोर्ट करें, इन चीजों को डॉक्यूमेंट करें। दिस इज अवर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम नहीं देखते, या हम ओवरलुक कर जाते हैं, या हम मिस कर देते हैं, या हम एज्यूम कर लेते हैं कि जी सब कुछ ठीक है, पूरा प्रोटोकॉल ठीक है, पेशेंट की प्रोफाइल भी ठीक चल रही है, तो अल्टीमेटली वही होगा जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। इंक्रीज टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली इट रिड्यूसेस एफिकेसी, QT प्रोलॉन्गेशन, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड सिवियर माइलोसप्रेशन, मतलब आपका पेशेंट खराब हो गया, ठीक है। एंड व्हाट इज फार्मेसी रोल? परफॉर्म प्रोएक्टिव मेडिकेशन रिकंसिलिएशन बिफोर ईच साइकिल। बार बार वही बात हो रही है, आपने हिस्ट्री चेक करनी है, आपने एज्यूम नहीं करना, आपने डोज चेक करनी है, आपने कीमोथेराप्यूटिक्स के मैं जी सिर्फ ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखूंगा या देखूंगी कि पेशेंट को कीमो का रेजीम क्या चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ये भी देखना है कि उसको अगर एडमिट है तो और कौन सी मेडिकेशन चल रही हैं, क्या उनका कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। तो आपने डेली पेशेंट की प्रोफाइल चेक करनी है। अच्छा, व्हाट अबाउट दोज पेशेंट जो कि डे केयर में आते हैं, अपनी कीमो एडमिनिस्टर करते हैं, घर चले जाते हैं, नेक्स्ट डे वो दोबारा आ जाते हैं, या 5th डे पर आ रहे हैं, या 2nd डे पर आ रहे हैं। शॉर्ट कीमोज भी तो होती है ना, पेशेंट को लगना है 3 डेज या 4 डेज या 5 डेज है, लेकिन उसकी शॉर्ट इन्फ्यूजन है, तो उसके लिए पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत नहीं है। वो डे केयर में आएगा, वो घर चला जाएगा, अगले दिन फिर आ जाएगा। उसको कौन मॉनिटर करेगा? वो तो एडमिट नहीं है, वो उसको तो राउंड पे कवर नहीं किया जा रहा, क्लिनिकल राउंड पे। तो अगेन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट के क्लिनिकल फार्मासिस्ट जाके उसकी भी प्रोफाइल को रिव्यू करेगा, उससे भी बात करेगा, उसकी भी काउंसलिंग करेगा, उसकी भी हिस्ट्री पूछेगा।
मेरे पास ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, जब भी कोई न्यू पेशेंट आता है किसी न्यू प्रोटोकॉल के लिए, हम एक दिन पहले पता चल जाता है कि जी ये न्यू पेशेंट है, कल ये इसने आना और इसकी फर्स्ट कीमो है। देखिए पेशेंट को भी एक खौफ है, मिथ्स तो बहुत है, बात भी बहुत होती है कीमो के लिए। तो पेशेंट को आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट जाके बात करेगा, उसको बताएगा कि आपकी ये कीमो है, इसमें ये ड्रग्स आती हैं, इनके ये साइड इफेक्ट्स हैं, आपको थोड़ा-सा हो सकता है पेट खराब हो जाए, थोड़ा-सा हो सकता है वॉमिटिंग हो, थोड़ा-सा हो सकता है नौसिया फील हो सकता है कुछ भी ना हो। आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है? तो ये सब मैम चीज़ें आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही है। स्लाइड शो नहीं हो रही, कब कहाँ से शो नहीं हो रही? आपने स्क्रीन शेयर की हुई थी मैम, प्रेजेंटेशन आपकी नहीं आ रही है। अच्छा 1 सेकंड। अब चेक करें। अब शो हो रहा है? जी मैम आ गई हैं आप। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सपोर्टिव केयर ऑप्टिमाइजेशन की। ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट डोज़ एडजस्टमेंट पे चले जाएँ। हो सकता है कि हम कुछ ऐसी सपोर्टिव केयर दे दें पेशेंट को कि हमारी डोज़ एडजस्टमेंट की नीड ही ना हो, ठीक है? तो क्या क्या कर सकते हैं हम कि हमें डोज़ एडजस्टमेंट करने से पहले वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा या हमें सपोर्टिव केयर देने की ज़रूरत होनी चाहिए या हमें उसके बारे में सोचना चाहिए? So the growth factors support aggressive antiemetic therapy, hydration optimization, electrolyte correction, infection prophylaxis, nutritional interventions. तो कुछ interventions ऐसी हो सकती हैं कि हमें dose adjustment की तरफ ना जाना पड़े. And ultimately, what will the goal is to maintain dose intensity safely whenever possible. प्रिवेंटिंग मेडिकेशन एरर, किस तरह से हम अपने मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं? कौन से कॉमन एरर हो सकते हैं या कौन सी कॉमन एरर सोर्स हो सकती हैं जहां से हमारा एरर ओरिजिनेट होता है? सो so the common error source is incorrect BSA calculation. हाइट और वेट ही ठीक नहीं था, हाइट वेट ठीक नहीं लिया गया तो BSA प्रॉपर कैलकुलेट नहीं हुआ, BSA कैलकुलेट डॉक्टर नहीं हुआ तो आप जी हेलो। डॉक्टर साहब आपकी स्लाइड्स फिर से जो है वो गायब हो गई हैं। अच्छा मैं चेक करती हूँ मेरे पास आप से वर्बली तो बता दें मैडम, नो इशू। अगर आप बस अभी हमें कंक्लूजन की तरफ ही हाँ हैं तो बस यू कैन जस्ट गो हाँ थ्रू बिल्कुल हम कंटेंट लास्ट एंड लेट स्लाइड्स पे अस ही हैं नो। हाँ। तो श्योर बस मैं श्योर, इसको कोई वाइंड मसला अप कर नहीं। रही हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल। कॉमन एरर हमारी क्या हो सकते हैं कि हमारी हमने बीएसए प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है? आउटडेटेड वेट था, वेट लिया था हमने लास्ट टाइम जब पेशेंट आया तो उसका वेट वाइटल सही नहीं हुए, उसका वेट नहीं ली गया तो उसका वेट ज्यादा हो गया या कम हो गया जो कि हो सकता है, तो हमारा बीएसए ठीक नहीं आया। डेसिमल का पॉइंट 1 आपकी 26.8 का डोज था, पॉइंट आपने डेसिमल हटा दिया, 268 मिलीग्राम का डोज हो गया, तो ये कौन चेक करेगा? दिस इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट ने चेक करना है। जब बीएसए सही होगा आप सारी डोजेस को रीचेक करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आपको ये सारे एरर्स आप उसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब कौन सी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज हैं? इंडिपेंडेंट डबल चेक, स्टैंडर्डाइज ऑर्डर सेट, फार्मासिस्ट वेरिफिकेशन, स्मार्ट इन्फ्यूजन पंप, इलेक्ट्रॉनिक एंड डोज कैलकुलेशन। जब आप स्टैंडर्डाइज या जो कि बहुत सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी मौजूद है स्टैंडर्डाइज ऑर्डर सेट्स कि जैसे ही हम इंडिकेशन पिक करें तो हम उसके अगेंस्ट जो भी हमारा रिजीम है वो ऑटो फार्मासिस्ट के पास शो हो, तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली आपके एरर्स रिड्यूस होंगे।
मल्टीडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, सेफ ऑन्कोलॉजी डोजिंग रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसके दरमियान होना चाहिए? ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है, और फार्मासिस्ट किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है? डोज वेरिफिकेशन कर रहा है, टॉक्सिसिटी मॉनिटर कर रहा है, एविडेंस बेस्ड रिव्यू कर रहा है, इंटरवेंशंस लॉक कर रहा है, पेशेंट की एजुकेशन कर रहा है, और मेडिकेशन रिकंसाइलेशन हो रही है। और ये सारी वो चीजें जो कि डेली बेसिस पे हो रही हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। So now we are on conclusion. Safe dose adjustment is not simply reducing chemotherapy dose, it is comprehensive clinical decision making process. ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या बैलेंस कर रहा है? पेशेंट सेफ्टी, ट्रीटमेंट एफिकेसी, टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्लिनिकल आउटकम। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? Thank you so much, madam, for such a great and educative content. I now request all of my attendees, if they have any question, kindly raise your hand so that we can take questions one by one. नो क्वेश्चन? सबको बहुत अच्छे से समझ आया है? Yes, madam. I think we have a question from Zishan Zafar. You can please unmute your mic and ask your question. Zishan, you can unmute your mic and ask your question. You can ask the query in the chat box, Zishan, it's okay. Dr. Sabah, his query is that what is the path to become a clinical pharmacist after PharmD? Sorry, repeat again. What is the path to become a clinical pharmacist after PharmD? ओके, आफ्टर फार्मडी आप डायरेक्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। ठीक है, और ये मत सोचें कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का टैग लग जाएगा देन आप क्लिनिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। तो एक जो ये आपका होता है ना अट्रैक्शन क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल के लिए, व्हेन यू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो टर्शरी केयर है या वो टर्शरी केयर नहीं है, जब आप फार्मेसी में आ गए, आपने आपके सामने कोई भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आ गई, चाहे आप ओपीडी फार्मासिस्ट हैं, लाइक एम्बुलेटरी केयर फार्मासिस्ट हैं, आप इन पेशेंट फार्मासिस्ट हैं, आप स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट ही बात कर रही हूँ, नॉट क्लिनिकल फार्मासिस्ट, आपके पास टैग है फार्मासिस्ट का, आपका क्लिनिकल रोल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि प्लीज ये मत सोचें कि जब हम 3-4 साल बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनेंगे, नहीं। आपका क्लिनिकल रोल उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है जब आप फार्मासिस्ट की सीट पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अब आप पायलट हैं, आपने जहाज उड़ाना है, तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आ गई, लाइक अगर वो पैनाडोल का भी एक ऑर्डर है, आपने उसकी भी डोज चेक करनी है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, आपने उसमें भी चेक करना है कोई डोज मॉडिफिकेशन की नीड है या नहीं, तो आपका क्लिनिकल वर्क स्टार्ट हो गया। आप 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स काम करते हैं, लाइक 2 इयर्स काम करते हैं एज अ फार्मासिस्ट, और उसके बाद आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनेंगे तो आप क्लिनिकल एक्टिविटीज करेंगे। मैंने एक एम्बुलेटरी केयर फार्मासिस्ट की तरह काम किया है, मेरे पास विंडो पे पेशेंट आया, मेरी क्लिनिकल एक्टिविटीज वहां से स्टार्ट हो जाती हैं। मैं वहां पे भी देखती हूँ अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव भी है और पेशेंट डायबिटिक भी है, तो उसका जो कंप्लीट एक रजीम लिखा हुआ है
ड्रग्स का, क्या उसमें कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, क्या उसमें कोई फ्रीक्वेंसी की मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है, क्या पेशेंट को हमें ये तो नहीं बताना कि पेशेंट वारफिन ले रहा है तो उसको कौन कौन से फूड्स हैं जो फूड आइटम्स हैं जो वारफिन के साथ नहीं लेने। तो आपकी क्लिनिकल एक्टिविटी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो प्लीज अपने माइंड से ये निकाल दें कि आपको क्लिनिकल के टैग की जरूरत है क्लिनिकल वर्क करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम, वी हैव अनदर क्वेश्चन, टू सिमिलर क्वेश्चंस, सो आई विल क्लब देम. थैंक यू सलवा एंड जैनब फॉर योर query. They are asking that is there any opportunity to get license as an oncology pharmacist in Pakistan? Is there a certain course or a certification that we can do to become an oncologist pharmacist? Like in my case, Aga Khan University Hospital, when I worked as a pharmacist in oncology area, तो मेरी organization ने मुझे certification करवाई थी from University of South Indiana in oncology. लेकिन अगर आपको इससे भी आगे जाना है तो आपके पास BCOP मौजूद है, आप BCOP कर सकते हैं जो कि बोर्ड सर्टिफिकेशन है एज अ ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट, आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आपका इंटरेस्ट है ऑन्कोलॉजी में, आपको ऑन्कोलॉजी ज्वाइन करना है किसी भी हॉस्पिटल का एज अ फार्मासिस्ट, तो उसके लिए आपको बिल्कुल डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब हमें ज्वाइन करते हैं तो हम आपकी स्क्रैच से ट्रेनिंग करवाते हैं। कोई किसी भी हॉस्पिटल को जब आप ज्वाइन करते हैं एज अ फार्मासिस्ट, आपको चाहे कुछ आता है या नहीं आता है, हम बिल्कुल बेस लाइन से फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, जब आप ट्रेंड हो जाते हो तो मेरा तो यही होता है अपने जूनियर्स को एक एडवाइस कि आप पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, वहां पे 1 साल या 2 साल लगाएं, वहां पे काम करें, वहां से एक्सपर्टीज लें, एक्सपीरियंस लें, देन आप किसी सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। Thank you, madam. We have another query from Salman. Does the chemically unequal brand non-accurate? I'm so sorry. Does the chemically unequal brand non-accurate API mixing while development of product will affect the dosing/toxicities? नो लाइकली, नो आई थिंक अच्छा ऐसा होता नहीं है, बिकॉज कि जब भी कोई ब्रांड या बायोसिमिलर इंडक्ट होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, फॉर द सिलेक्शन। हम वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसपे हम किसी भी बायोसिमिलर को इंडक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अगेंस्ट उसके बहुत सारी प्रीरिक्विजिट्स होते हैं जो कि सबमिट करवाती है हमें वो फार्मास्यूटिकल। अगर वो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है तो वो इंडक्ट होता है, ठीक है। और उसको भी कंफर्म करता है या वेरीफाई करता है या अप्रूव करता है वहां का, उस हॉस्पिटल का एक बोर्ड होता है जिसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, फार्मेसी भी होती है, सप्लाई चेन टीम भी होती है, तो वो मिलकर उस बायोसिमिलर को अप्रूव करते हैं, फिर वो हॉस्पिटल में इंडक्ट होती है। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे हालात हो जाएं कि हम कोई भी प्रोडक्ट ले लें और हमें यही ना पता हो कि उसका एपीआई कहाँ का है। तो हाँ, मोस्ट लाइकली हो भी सकता है। और क्योंकि ये वो वाले सिनेरियोज हैं जो कि वंस इन अ ब्लू मून में होते हैं, जबकि बहुत ज्यादा डाउनफॉल है, बहुत क्राइसिस है, ड्रग अवेलेबल नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, कोई थेराप्यूटिक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो हमें इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग होती है। Am I audible? Yes, ma'am. Thank you. Yes. Thank you so much for the explanation. I think we don't have. Okay, we have another query from Sabika. Sabika, thank you for your question. How do we manage drug toxicity if any chemotherapeutic drug targets healthy cells in any patient? Dr. Sabha, can you hear me? Hello. Any Dr. question? Sabha, can you hear me? Can you hear me now? Yes. अब आई है आपकी आवाज यमुना। Okay, we have another question. It's from Sabika. How do we manage drug toxicity if any chemotherapeutic drug targets healthy cells in any patient? अच्छा, देखिए अभी जो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन थी ना वो इसी पे बेस्ड थी, जो कि थी डोज मॉडिफिकेशन।
देख, आपके हेल्दी सेल्स इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये जो हमने स्कोरिंग्स की और टॉक्सिसिटी ग्रेडिंग की बात की ना, उससे हमें आइडेंटिफाई हो रहा होता है। ठीक है, जिसमें हमें सपोर्टिव मेडिकेशन देनी होती है, लाइक हम GCSF भी दे रहे होते हैं। ठीक है, कि हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं वो, हमारा काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाए, या जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं वो अपनी जगह पे रहें। तो ये हमने ECOG परफॉर्मेंस स्टेटस की बात की, हमने टॉक्सिसिटी ग्रेडिंग की बात की, हमने एल्बुमिन लेवल की बात की, हमने बॉडी सरफेस एरिया की बात की। तो हमारे हेल्दी सेल्स को हेल्दी रखने के लिए ये सारी जो डोज मॉडिफिकेशन की बात हुई है ना, ये इसीलिए हुई है। तो दीज आर द स्ट्रेटजीज जिसको देखते हुए हम अपने हेल्दी सेल्स को नॉर्मल रख सकते हैं। Thank you so much, madam. I think on this note, we should conclude this session. I would like to thank you profusely for giving us time and such educative session. For my audience, if you have any relevant questions, you can always reach out to our team and have a good day. Thank you so much, madam. Thank you so much once again. Thank you, Yamuna. Thank you all of you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.